Hello students, today we will going to start next topic of transportation, that is transportation in plants. Transportation in plants is carried out in two manner. First is transportation of water and minerals, and second one is transportation of food and other substances. Okay. We are very well known that water and minerals is transported by a special complex tissue whose name is xylem. Similarly, transportation of food is carried out by phloem. First of all, we will study about the transportation of water and minerals in plants. As we all know that water is the major raw material for the photosynthesis and other metabolic activities of plant. Water is absorbed or taken up by the plants through the soil, and through the soil it is firstly absorbed in the roots by means of root hairs. Okay. Along with water, some minerals are also absorbed by the roots that is dissolved in the water. Okay. This water and minerals combinedly or in common called as sap. So we can say that root absorbs sap from the soil and passes it to different cells of the plant. Xylem first of all absorbs the water from the roots, from the root xylem, and carried it to the upper side of the plants by means of a xylem conductive tissue. Transportation of water and minerals is studied under the following point, that is, first we have to study about the root pressure, and this theory was postulated by Priestley, and therefore it is termed as root pressure theory. Okay, termed by Priestley. The next we have to study is transpiration pull along with adhesion and cohesion theory. Let me start one by one. We start with the root pressure theory. What is root pressure theory? As the name suggests, it is associated with the root. If we draw a transverse section of root, what will we see? That the outer layer of root, that is known as epidermis, has small modification in the form of root hairs. Suppose this is the epidermis of root and it has a small modification, extension of root hair. Below epidermis there is a different cells form cortex. There are lots of cells here that form cortex inside. After cortex there is a inner layer. It is termed as endodermis. This is the epidermis, epidermal cell, and it is the endodermal cells. After endodermis, there is a very fine collection of conductive tissue. It is phloem, and these are xylem,
This xylem constitute root xylem. It is also known as root xylem. Okay, like this way. It is surrounded by a phloem cells. We draw it first. This is the xylem. You can look it very well. Okay. Like this. Suppose there are soil particles here. This diagram you can easily understand how water enters into the root through the soil. Let me first label this diagram. This layer, first layer that is in direct contact with the soil is termed as epidermis of root. This epidermis has this extension and this extension is termed as root hair. Below epidermis, this tissue is termed as cortex, which is made up of parenchymatous tissue. Below cortex, towards the inner side, there is another layer that is known as endodermis. Below endodermis, there is a network of vascular tissue. First of all, you have find surrounding tissue that is phloem, and this polygonal cells or that form a tissue is known as xylem. And this xylem found in root, that's why it is known as root xylem and root phloem. Okay. Through this diagram, we come to know how root pressure works. रूट प्रेशर क्या होता है, कैसे वर्क करता है. इसके लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि बाहर सॉइल में, सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में वाटर प्रेजेंट रहता है और उस वाटर में डिफरेंट सॉल्ट्स या डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स फिल्ड रहते हैं, मिनरल्स फिल्ड रहते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया. ओके, तो इस तरह के जो मिनरल्स हैं वो वाटर के साथ डिसॉल्व कंडीशन में रहते हैं. रूट हेयर के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम पे जब इसको वाटर अब्सॉर्ब करना होता है, तब क्या होता है, रूट के अंदर सॉल्ट के आयनिक कंसंट्रेशन, जो ये मिनरल्स हैं इनका आयनिक कंसंट्रेशन लो हो जाता है और सॉइल में इनका आयनिक कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है. ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, ये जो आयंस है, सॉल्ट के आयंस हैं, ये डिफ्यूजन मेथड से रूट हेयर के अंदर इंटर कर जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आयंस इंटर करेंगे. ठीक है, तो जब आयंस रूट हेयर के अंदर इंटर करेंगे तो रूट हेयर के अंदर आयंस का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा और बाहर इसके रूट हेयर के साइड बाय एरिया में आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा. अब जब ये आयनिक कंसंट्रेशन का डिफरेंस क्रिएट होगा तो यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होगा जिसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर भी कहते हैं, क्योंकि अंदर की तरफ सॉल्ट का आयनिक कंसंट्रेशन हाई होने के कारण यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन लो रहेगा एज कंपेयर टू आउटसाइड एरिया. आउटसाइड एरिया मतलब सॉइल में वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा और रूट के अंदर कम होगा, जिसके कारण ऑस्मोसिस प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होगा और उस ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण वाटर का मॉलिक्यूल रूट हेयर में इंटर कर जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस प्रेशर क्रिएटेड osmotic pressure, and due to osmotic pressure water enters into the root hair. Okay, same phenomena apply in the next cell. अब हम इस सेल की बात करें तो यहाँ तो वाटर पहुंच गया, पर इस वाले सेल में वाटर का कंसंट्रेशन कम है. अब हायर टू लोअर फिर ये मूव करेगा थ्रू द सेल्स मेम्ब्रेन, एंड सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल इन नेचर. तो यहाँ पे फर्दर फिर एक ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, जिसके कारण वाटर अंदर की ओर सेल्स में फ्लो करना स्टार्ट करेगा और एक सेल से होते हुए दूसरे सेल तक ये सब सीक्वेंटली मूव करता जाएगा इस तरह से. ठीक है, और जब ये मूव करेगा एक सेल से दूसरे सेल में तो ये एंडोडर्मिस से भी क्रॉस कर लेगा और इंटर कर जाएगा
जाइलम सेल में, ठीक है। जाइलम के जो पेप्टाइड्स होते हैं उनमें ये इंटर कर जाएगा और ये जब जाइलम में इंटर करेगा तो जाइलम में एक कंटिन्यूअस वाटर कॉलम क्रिएट हो जाएगा और इसी प्रेशर के कारण ये जो वाटर है ये अपवर्ड मूव करना शुरू कर देगा। तो रूट में जितना भी वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ये रूट प्रेशर की हेल्प से हो रहा है, जो एक तरह का ऑस्मोटिक प्रेशर ही होता है जो रूट में जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम रूट प्रेशर एंड दिस मैकेनिज्म ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन इनसाइड द रूट इज टर्म्ड एज रूट प्रेशर थ्योरी, ओके। पर रूट प्रेशर थ्योरी कहाँ तक एप्लीकेबल है, इसकी भी कुछ लिमिटेशन है। जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं लाइक पैडी प्लांट्स और we can say tomato plants, oats plants, in this plant root pressure theory is applicable for the transportation and conduction of water. But what happened to tall trees? tall trees में क्या होगा, उनकी हाइट तो बहुत लॉन्ग होती है, क्या ये रूट प्रेशर वहां तक वर्क कर पाएगा? नहीं, वहां पर ये वर्क नहीं कर पाएगा। उस कंडीशन में प्लांट अपने लिए एक अलग से स्ट्रेटेजी डिसाइड करके रखता है और वो है ट्रांसपीरेशन। वहां पर हाइट की जो प्लांट होते हैं, टॉल प्लांट्स होते हैं, वहां पर ट्रांसपीरेशन हेल्प करता है वाटर के कंडक्शन में, जो हम पढ़ेंगे ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी और एडेशन एंड कोहेशन थ्योरी के अंदर। बिफोर स्टार्टिंग आवर ट्रांसपीरेशनल पुल थ्योरी we have to understand the word transpiration. What is transpiration? Transpiration is a process in which water is lost from the aerial parts of the plant, especially through stomata. Okay, so how we can define it? It is a process in which loss of water occurs through aerial parts of plant in the form of water vapors. Water is lost in the form of water vapors. It is obvious that this process is mainly occurs during the daytime where sunlight is available, and due to the sunlight water gets evaporate through the stromata, and this process is termed as transpiration. Okay, whatever the amount of water absorbed by the plant, जितना पानी प्लांट एब्जॉर्ब करता है उसका ओनली 1% ही वो यूज करता है, ठीक है। तो वाटर एब्जॉर्ब ओनली 1% ऑफ एब्जॉर्ब वाटर is used during the photosynthesis and other metabolic activities. Only 1% of absorbed water is used for photosynthesis and other metabolic activities. What about 99%? 99% of water get evaporated through transpiration. It get evaporated through stromata during transpiration. If this much amount of water is lost through the plant, then what will happen to that plant which is survive in dry area or that are present in desert area? They require continuous water supply to meet the demand of their photosynthesis and metabolic activity. But what happen? This transpiration, as the water get evaporates, it will create a suction pressure inside the xylem vessels. Okay, जैसे जैसे पानी एवोपरेट होता जाएगा अपर पार्ट में से, तो उससे कनेक्टेड जो भी जाइलम वेसल होगा वहां पर एक सक्शन प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और उस सक्शन प्रेशर से क्या होगा, नीचे वाले कॉलम से वाटर अपवर्ड मूव करना शुरू कर देगा। आपने कभी कोल्ड ड्रिंक
पी होगी स्ट्रॉ वगैरह यूज करके, तो आप जब ऊपर से स्ट्रॉ को सक करते हो तो सक करने से क्या होता है, अंदर का जो एयर कॉलम है वो आपके अंदर सक हो जाता है और अंदर का वो नीचे वाला जो लिक्विड है वो स्ट्रॉ में ऊपर की ओर चढ़ना शुरू हो जाता है। तो सिमिलर यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है। ट्रांसपिरेशन क्या कर रहा है, ऊपर से वाटर कॉलम को सक करने का काम कर रहा है, इवोपरेशन से सकिंग हो रही है और इस सक्शन प्रेशर से नीचे का जो वाटर कॉलम है वो अपर साइड के ट्रैकाइड्स में या जाइलम वेसल्स में अपवर्ड मूव करने लग जाएगा। इसी सक्शन प्रेशर को या पुल प्रेशर को हम ट्रांसपिरेशनल पुल कहते हैं एंड दिस ट्रांसपिरेशन पुल हेल्प इन द ascending movement of water and minerals. Water and minerals are collectively termed as SEP. So we can say this transpiration pull help in the ascent of SEP. Okay. ट्रांसपिरेशन पुल हम इस डायग्राम के थ्रू बहुत इजीली समझ जाएंगे। अब यहाँ पे होता क्या है, पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। जैसे ही रूट प्रेशर के कारण जो वाटर है अलोंग विद सम मिनरल्स इंटर कर जाता है और सबसे पहले कहाँ इंटर करेगा, सॉइल से रूट हेयर में, रूट हेयर से जाएगा ये एपिडर्मिस में, ठीक है। रूट हेयर से ये पहुंच गया एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस से ये कॉर्टेक्स में जाएगा, यहाँ पे जो कॉर्टेक्स के सेल है वहां पे जाएगा, दिस इज द कॉर्टेक्स सेल। कॉर्टेक्स सेल से होता हुआ ये पहुंचेगा एंडोडर्मिस में, दिस इज द लेयर कॉल्ड एंडोडर्मिस, अंदर की लेयर है, ठीक है। एंडोडर्मिस में इंटर करेगा, एंडोडर्मिस में इंटर करने के बाद ये पहुंचेगा रूट जाइलम में, ठीक है। तो यहाँ पे ये रूट जाइलम में पहुंच जाएगा और जैसे ही ये रूट जाइलम में पहुंचेगा तो यहाँ पर रूट जाइलम टू जाइलम मतलब ट्रैकाइड्स टू ट्रैकाइड्स इस वाटर को ऑस्मोसिस मतलब रूट प्रेशर के जरिए ऊपर की ओर एसेंट कर देगा, ऊपर की ओर मूव करवा देगा, ठीक है। अब जैसे ही ये यहाँ तक पहुंच जाता है और स्टेम जाइलम से कनेक्ट होता है तो स्टेम जाइलम क्या करेगा, इसको अपवर्ड मूव कराएगा। अब यहाँ पर अपवर्ड मूव कराने के लिए इसको किसी न किसी फोर्स या प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। आपने देखा होगा नॉर्मली हम जब घरों में नीचे लोअर टैंक से अपर हेड टैंक पर जब हम पानी को चढ़ाते हैं तो हम एज इट इज नहीं चढ़ा पाते। अगर आपका घर 1 स्टोरी का है या लो लेवल पे आपने कोई टैंक रख रखा है तो वहां नीचे आने वाले वाटर से अगर प्रेशर है उस वाटर में तो आसानी से ओवरहेड टैंक में पानी चढ़ जाएगा। पर बहुत ज्यादा हाइट का अगर आपका मकान है या बिल्डिंग है वहां पर ओवरहेड टैंक में आपको पानी चढ़ाना है तो आपको एक मोटर पंप की हेल्प लेनी पड़ती है ताकि उसमें एक प्रेशर और फोर्स क्रिएट हो जो कि वाटर को अपर पार्ट तक मूव करा सके। तो सेम यहाँ पर भी जो ट्रांसपिरेशन है जो स्ट्रोमेटा के थ्रू हो रहा है वो एक मेजर रोल प्ले कर रहा है इस पानी को, इस सेप को ऊपर की ओर मूव कराने में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही वाटर रूट जाइलम में ऊपर कंडक्ट हो रहा है और स्टेम जाइलम में पहुंचता है तो यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट होती है प्रेशर की, और प्रेशर की रिक्वायरमेंट कहाँ से आएगी, स्ट्रोमेटा। ये स्ट्रोमेटा है, स्ट्रोमेटा से रेगुलर क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है। ट्रांसपिरेशन के कारण यहाँ से जो वाटर है वो रिमूव होता जाएगा और ये वाटर कहाँ से आएगा, सब्सिडरी जो मीजोफिल सेल्स होती है, फोटोसिंथेटिक मीजोफिल सेल्स जो लीव्स में प्रेजेंट होती है वो वाटर को स्ट्रोमेटा तक पास कर देती है थ्रू देयर जाइलम। अब इसमें वाटर का कंसंट्रेशन कम हो गया है तो क्या होगा, ये जाइलम से अपना वाटर रिक्वायरमेंट पूरा करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे जाइलम वाला पानी इस साइड आ जाएगा, पर ये कंटिन्यूअसली हो रहा है तो क्या होता है, जैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकलता है तो उसके जो साइड में सेल होता है वहां पे वाटर का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। ऐसे ही 1 बाय 1 ये वाटर का कंसंट्रेशन कम होने लग जाता है। तो उस कंसंट्रेशन, उस जगह को फिलअप करने के लिए जो वाटर सबसाइड सेल्स में होते हैं वो उसमें एंटर कर जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये वाटर का एक कंटिन्यूअस फ्लो यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट में होने लगता है ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन पुल और सक्शन प्रेशर। तो ये जो ट्रांसपिरेशन है ये एक पुल क्रिएट कर रहा है और इसी को ही हम क्या कह रहे हैं, सक्शन प्रेशर। और इस सक्शन प्रेशर के कारण यहाँ पर
वाटर प्लस मिनरल, इसे हम कहते हैं सेक। तो सेक का एसेंट हो रहा है, एसेंट मतलब ऊपर की ओर मूवमेंट, तो इसी को ही हम कहते हैं एसेंट ऑफ सेक। क्लियर है इतनी बात आपको? तो ट्रांसपिरेशन पुल और सक्शन प्रेशर दैट इज क्रिएटेड बाय ट्रांसपिरेशन हेल्प इन द एसेंट ऑफ सेक। नाउ वी कैन राइट व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रांसपिरेशन removes water from stomata. This creates a suction pressure inside photosynthetic mesophilic cell. The cells around stomata present in leaves are termed as mesophilic cells, and these cells have chloroplasts that perform photosynthesis. That's why we are called them photosynthetic mesophilic cell. तो स्टोमेटा से जैसे ही वाटर रिमूव होगा तो मेसोफिलिक सेल में एक सक्शन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, एक सक्शन प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। दिस सक्शन प्रेशर creates a pull to receive water from xylem vessels. Okay. From where? From root xylem to, and due to this suction pressure, water moves up, जिसे हम कहते हैं ascent, from root xylem to stem xylem up to the leaves. Okay, this transpiration pull create a suction pressure that ascend the sap from the roots to aerial part. Sorry. This pull is termed as transpirational pull or transpiration pull. Okay, and this pressure, suction pressure, makes the water to move upward in the xylem conductive tissue. So the column of water moves up, and this process of moving up is termed as ascent of sap. And this is very important. कई बार एग्जाम में ट्रांसपिरेशन पुल, एसेंट ऑफ सैप, या फिर पूछ लिया जाता है हाउ वाटर एंड मिनरल्स गेट ट्रांसपोर्टेड इनसाइड द प्लांट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और डायग्राम बना के आप शो करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। Water property like cohesion and adhesion help in the ascent of sap. Cohesion means holding water molecule together, and adhesion means holding water to the xylem vessel and help in capillary action of xylem vessel. Transpiration pull mainly occurs during the daytime. Transpirational or transpiration pull is major driving force. What do you mean by driving force? To get something, it drives something. Okay, it is a driving force that help in ascent of sap during daytime. अब एवोपरेशन हो रहा है ट्रांसपिरेशन में, तो ऑब्वियस सी बात है डे टाइम में ही हो रहा होगा। रात में क्या होगा? पानी नहीं चढ़ेगा, पानी नहीं पहुंचेगा, वहां पे इसका जो रेट है, जो चढ़ने का, वाटर एसेंट का रेट है, वो स्लो हो जाएगा, बिकॉज ट्रांसपिरेशन इज नॉट देयर इन द नाइट, बट देयर रूट प्रेशर वर्क,
root pressure works during night or during rainy season. Let me talk about the significance of ट्रांसपीरेशन. इसके ट्रांसपीरेशन के क्या क्या फायदे हैं, क्या इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है. तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस तो कहाँ है भाई? इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर. ओके. दूसरा सिग्निफिकेंस, अब जल्दी जल्दी एवोपरेशन हो रहा है वाटर का, तो इससे क्या होगा, उस एनवायरमेंट में, उस एरिया में वाटर वेपर्स का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा. और हमें पता है जब किसी एरिया में मैक्सिमम वाटर वेपर प्रेजेंट होता है तो वहां पे फिर प्रेसिपिटेशन होने लग जाता है, और प्रेसिपिटेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल. तो दैट्स व्हाई ट्रांसपीरेशन हेल्प इन द रेनफॉल. Helps in bringing rainfall. अब रेनफॉल आ रहा है तो यहाँ पे क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है, तो इट हेल्प्स टू मेंटेन क्लाइमेट. यहाँ पर हम सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर नहीं बोलेंगे, हम इसके साथ साथ मिनरल्स को भी जोड़ देते हैं, क्योंकि मिनरल्स भी इसी के साथ आ रहे हैं. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज गटेशन. अब गटेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस थ्रू द pores present on the tip of leaf veins in the form of water droplets. आपने देखा होगा कई प्लांट्स में जो लो लाइन प्लांट्स होते हैं, सुबह सुबह लीफ पर ओस जमा होती है और वो ओस एक ड्रॉपलेट की फॉर्म में होती है. दैट इज कॉल्ड गटेशन. ठीक है. अब मान लीजिए यहाँ पर एक लीफ है और लीफ की जो वेन्स होती है, ये वेन्स कहलाती है. इन वेन्स के टिप पर यहाँ पर पोर्स होती है, जहाँ पे वेन्स जाती है वहाँ टिप पे पोर्स होते हैं. ठीक है. और इन पोर्स को हम बोलते हैं hydrathodes. These pores are termed as hydrathodes. इन hydrathodes के थ्रू ये जो एक्सेस वाटर है ये लॉस हो जाता है और यहाँ पर आपको वाटर की ड्रॉपलेट्स दिखाई देती है. इस वाटर की ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में जब वाटर का रिमूवल होता है लीफ के थ्रू, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं गटेशन. गटेशन के लिए एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, वो है रूट प्रेशर. एक्चुअली क्या होता है, जब वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट के जो प्लांट्स होते हैं वो रूट प्रेशर ज्यादा करते हैं क्योंकि वहाँ ट्रांसपिरेशन कम होता है. अब रूट प्रेशर जब हो रहा है तो रेगुलर वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, पर रिमूवल इतना नहीं हो रहा. तो रिमूवल कौन करवाएगा? रिमूवल हाइड्राथोड्स करवाएंगे बाय मीन्स ऑफ गटेशन. लेट मी स्टडी द डिफरेंस. सबसे पहली बात ट्रांसपिरेशन की, इट अकर्स ड्यूरिंग डे टाइम. ठीक है. कब होता है ये? ड्यूरिंग डे टाइम. और गटेशन अकर्स ड्यूरिंग नाइट टाइम और अर्ली मॉर्निंग टाइम. ओके. ट्रांसपिरेशन में वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. लॉस ऑफ वाटर in the form of water vapors. पर गटेशन में क्या हो रहा है? गटेशन में भी लॉस ऑफ वाटर है,
बट ये क्या है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर हम देखते हैं थर्ड, ट्रांसपिरेशन हो रहा है अकर्स थ्रू स्टोमेटा। Transpiration occurs through stomata, whereas guttation occurs through hydrathorax. Hydrathorax क्या होते हैं? They are pores present at the tip of leaf veins. ये आपको ध्यान रखना, हाइड्राथोर्स किसको कह रहे हैं? लीफ वेन्स की टिप पे जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम कह रहे हैं स्ट्रोमेटा लीफ की सरफेस पे एपिडर्मिस की जो ओपनिंग होती है उसको कहते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट हम देखें, जब एवोपरेशन हो रहा है वाटर का, तो एवोपरेशन के समय में सॉल्ट एवोपरेट नहीं होता, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल एवोपरेट होता है। इसका मतलब इवोपरेशन में प्योर वाटर निकल रहा है, पर जब गटेशन होता है तो वाटर ड्रॉपलेट निकलती है, उस वाटर ड्रॉपलेट में सॉल्ट भी प्रेजेंट होता है। तो इवोपरेशन ट्रांसपिरेशन में क्या होता है? ओनली प्योर वाटर रिमूव, ओके। और गटेशन में क्या होता है? वाटर प्लस सम सॉल्ट्स रिमूव, कुछ सॉल्ट्स भी रिमूव हो जाते हैं। ट्रांसपिरेशन के कारण क्लाइमेट चेंज होता है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग क्लाइमेट सच एज बाय ब्रिंगिंग रेनफॉल, कूलनेस, ना प्लांट का जो टेम्परेचर है वो भी कम हो जाता है, पर गटेशन में ऐसा नहीं होता। इट डज नॉट शो एनी इफेक्ट लाइक दिस। क्लाइमेट चेंजिंग, ओके। ट्रांसपिरेशन से टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा है, इट कूल्स डाउन द प्लांट बॉडी। गटेशन नहीं करता भाई, इट डज नॉट डूल। ओके, एक चीज और हो जाती है, अब ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो मेसोफिलिक सेल में से वाटर लॉस होगा स्ट्रोमेटा में, तो मेसोफिलिक सेल क्या होंगे? उनमें टर्जिडिटी कम हो जाएगी, वो श्रिंक हो जाएंगे, और हो सकता है कि ज्यादा पानी लॉस हो जाए तो पत्ते जो है वो मुरझा जाए, विल्टिंग हो जाएगी, पर गटेशन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन lose turgidity of mesophilic cell and cause wilting of plant या wilting of leaves। प्लांट्स जो प्लांट की लीव्स हैं वो मुरझा जाती हैं, ज्यादा गर्मी हो रही है, पानी प्रॉपर नहीं जा रहा, ट्रांसपिरेशन हाई रेट का हो रहा है, तो विल्टिंग ऑफ लीव्स हो जाती है, पर गटेशन में ऐसा नहीं होता। इट डज नॉट कॉज विल्टिंग ऑफ लीव्स। तो ये तो है कुछ डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसपिरेशन एंड गटेशन। यहाँ पर आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू जाइलम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड